Now let's talk about the other communicable diseases which are caused by the viruses. In the previous video, I have discussed about the diseases, types of diseases, and bacterial diseases. Now in this video, I will discuss about the viral diseases. So as we know that viruses are cellular or it is a non-cellular, as that's why their genetic material, it having only genetic material, either DNA or RNA. Clear? So this nucleic acid, this genetic material is helping to cause any viral diseases. Now whenever whenever any viruses enter into the human body, it will get replicate to itself and increase their population inside the body with the help of human energy product. So why viruses need the energy, human energy? Because it can't be produce energy itself. That's why it needs a host which are alive, their body part healthy in production of energy. So due to the acquiring energy from the host, the viruses get alive and continuously replicating itself, increasing their population inside the host. So host can be animals, host can be human body. Clear? It can be a plant body. सो अब जब वायरस किसी तरीके से ऑर्गेनिज़म के, लिविंग ऑर्गेनिज़म के बॉडी में इंटर करता है, तो उसका जो डीएनए है वो कंटिन्यूअसली रेप्लिकेट करता है. क्यों? उसको एक लाइव होस्ट की ज़रूरत होती है. क्यों? क्योंकि वायरसेस एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज़म है जिसके पास उस सेल नहीं होता है, और उस सेल ना होने की वजह से वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, वो उस टाइप के एंजाइम्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता है जो उस वायरसेस को ज़िंदा रखने में हेल्प करें. तो इसलिए वायरसेस हमेशा किसी लाइव ऑर्गेनिज़म को अटैक करता है, और उस जब वो इंटर करता है किसी लाइव होस्ट के अंदर, तो उस होस्ट के एंजाइम्स को यूज़ करता है और एनर्जी यूज़ करता है ताकि वो अपने ही वायरसेस और ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर सके. ठीक है? अब ये होस्ट क्या है? होस्ट लिविंग ऑर्गेनिज़म जैसे प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडी एंड ह्यूमन बॉडी. So these are the included in the host. So the host is very important for virus to multiplicate inside the host. Now this viruses, whenever the viruses enter into the body of host, it continuously divide its DNA continuously replicate itself and increase the copy number inside the host. Now due to the large population of the viruses causing the such diseases which are transmission which are transmission like, which are transmitted or not. So let's talk about the diseases caused by the viruses. First diseases you can see in this book, that is common cold. ठीक है? This is the viral diseases, common cold. It is a highly contagious viral infections, means it is very harmful infection, and the diseases is caused by different viruses. So this common cold diseases caused by the many different diseases.
and it actually affect the elder, babies and young ones who are obviously ill at the special risk. In the when virus affect the whole upper respiratory tract, means this common cold diseases is related to the lungs. Clear? So अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब है कि इट इज़ नॉट रिलेटेड, अभी हमने जो बोला लंग्स, दैट इज़ नॉट ट्रू. सो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लंग्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं. इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ट्रैकिया हो गए हैं, ब्रोंकाई हो गए हैं एंड एल्वियोलर हो गए हैं. सो दिस आर अपर ट्रैक्ट ऑफ the body get affected by the different kinds of viruses. Clear? हमेशा याद रखिएगा, the common cold not affected the lungs, it is affected to the upper respiratory tract of the human body. And whenever the virus is stuck in the upper respiratory tract of the human, it producing it inflamed and producing swollen inflamed lining of nose. Clear? And also in fact the throat, it affect the larynx. So that is called as a common disease, common cold diseases. जो नॉर्मल सर्दी होते हैं, सर्दी ज़ुकाम होते हैं, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कॉमन कोल्ड इन विच द नोज़ एंड लैरिंग्स गेट अफेक्टेड. तो म्यूकस आल्सो इन्वॉल्व प्रोड्यूसिंग इनसाइड द नोज़ which are actually having the viruses. And whenever the air breathed, coughed, sneezed out by affected person may infect to another person. सो जब कोई सर्दी ज़ुकाम होता है तो उसकी वजह से जब हम स्नीजिंग एंड कफिंग करते हैं तो जो ड्रॉपलेट होते हैं वो एयर में डिफ्यूज़ हो जाते हैं, जिसके और उसकी वजह से कोई नॉन इन्फेक्टेड पर्सन और हेल्दी पर्सन उस ड्रॉपलेट्स की वजह से वो इन्फेक्टेड हो जाता है. तो दैट इज़ known as a common cold. What is the symptom of this common cold? Actually it is in, as I told you that it affected the upper respiratory tract. So it means nasal congestion and discharge, means mucus continuously discharge from the nose. एंड सॉर थ्रोट हो जाते हैं, हेडक हो जाते हैं. रनिंग नोज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ द रनिंग नोज. ड्राई एंड tickly cough, nasal congestion and discharge, and these are the important symptoms of the common cold. Now what is the transmission agent of this diseases? Droplet, actually this droplet help to transmission such kind of diseases. Whenever any infected person get sneezed and coughed, their droplets diffuse in the air, and any healthy person contact with these droplets get affected from the common cold. So what is the prevention and treatment? So first the isolation of such kind of patient, and keep the patient in a temperature down. So having protection so that their body will the temperature of get down, and take drinks a lot of water, so that due to the a lot of water this virus is released out from the urine excretion, sorry, not secretion. So due to the excess water, viruses get is excreted out from the body.
Next painkillers, inhale steam and extra sleep, rest in bed. So these are the common treatment which are done itself at our home. Clear? So this is the important treatment against the common cold. Now next viral disease is the fever, that is dengue fever या dengue fever. It is pronounced as dengue fever, not dengue. So dengue fever is also known as a Braak-borne fever. Now this disease is caused by dengue viruses. So डेंगू वायरसेस क्या हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे. सो डेंगू फीवर इज़ मोस्ट सीवियर कंडीशन. एक्चुअली जब कोई भी डिसीज़ को इनिशियली उसको डायग्नोस्ड नहीं किया जाता है तो सच काइंड ऑफ डिसीजेज गेट एक्यूट एंड क्रॉनिक फेज. So disease is having 2 to 3 stages, such as mild, initial, mild, acute and chronic. Chronic is the last stage or phases of any diseases in which a the person's survival is very less. Clear? And but acute and mild diseases are diagnosed by us and by the doctor, which are actually help in the surviving. Clear? So कभी भी कोई डिसीजेज हो तो उसको अपने तरीके से ठीक करने की कोशिश कीजिए, बट जो भी दवा लेनी हो वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. अदरवाइज़ जो आप पेन किलर ले रहे हो वो उस कंडीशन के लिए सही हो जाता है, बट आप ज़रूरत से ज़्यादा पेन किलर लेते हो तो इट एक्चुअली अफेक्टेड योर किडनी, लीवर. So liver and kidney will get malfunctions with the excess intaking of the any painkiller. Now come to on our next viral disease, that is dengue fever. It is caused by the dengue viruses. So dengue viruses कौन से होते हैं? It is called flaviviruses. ठीक है, तो flaviviruses you can see. Flaviviruses is a group of the viruses and it contains RNA as a genetic material. ठीक है, so those viruses which having only RNA, that is known as a flaviviruses, and group of these viruses is called flaviviridae. Clear? आगे की क्लासेस में साइंटिस्ट वायरोलॉजिस्ट ने वायरसेस को उनके जेनेटिक मटेरियल के अकॉर्डिंग वायरसेस को अलग अलग क्लासिफाइड किया है. तो जो वायरसेस डीएनए रखते हैं उनको अलग कैटेगरी दिया गया है, और जो वायरसेस आरएनए होते हैं तो उन्हें अलग किया था. उसमें से एक एग्जांपल है फ्लेविवायरिडी. Flaviviridae contains a lot of viruses which having the RNA in as a genetic material. So such kind of RNA virus is called flaviviruses. So flaviviruses caused the dengue fever, and this dengue fever is also known as a Braak-borne fever. एक्चुअली ये जो कॉमन नेम है ना, ये आप लोग को याद रखने चाहिए, क्योंकि कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं कि विच काइंड ऑफ डिसीजेज इज़ नोन एज अ Braak-borne fever. So you have to know about this. So what examiner talks about. Now this flaviviruses cause the dengue fever, and there are 4 strain of the viruses which are called serotype. ठीक है, फ्लेविवायरसेस बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन उनके जो डिफरेंट स्ट्रेन होते हैं. स्ट्रेन मतलब मॉडिफाइड ऑफ सच पैथोजन.
तो जिस तरीके से कोविड अभी रिसेंटली कोविड है, कोविड के वेरिएंट्स चल रहे हैं, तो उसी तरीके से ये फ्लेवी वायरसेस या डेंगू फीवर के भी स्ट्रेन हैं। तो दैट लेट्स टॉक अबाउट द सीरोटाइप ऑफ द फ्लेवी वायरसेस सच एज DENV1, DNV2 and DVNV3. Actually, these strain or variants is a modified version of the viruses. And first, whenever any virus is causing the diseases, first that kind of viruses, flaviviruses, is called NV first. So first is denoted the first or earlier strain of the flaviviruses. Clear? So DENV1, DENV2 and NV3 and NV4. There are 4 serotypes of the dengue fever causing the diseases of fever, dengue. Now infection with one serotype produces lifelong immunity to that serotype, but only short term protection against the others. तो हमने अभी क्या समझा कि डेंगू फीवर एक ब्रेक बॉर्न फीवर हो, इसको हम कॉमन नेम जानते हैं, और ये डिसीज़ वायरस की वजह से होता है। कौन से वायरस की वजह से? फ्लेवी वायरसेस। और ये फ्लेवी वायरसेस का जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट इज़ RNA. So it contains RNA as a genetic material, and the group of the viruses is called Flaviviridie, and there are 4 variants, 4 strain of these flaviviruses. It can DENV1, 2, 3 and 4. So all these strain involving in the dengue fever. Now let's talk about the transmission. सभी को पता है, डेंगू फीवर जब दिल्ली में हुआ था तो वहाँ से सब एक्चुअली इट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम अनदर कंट्री एंड कैन बी सीन मेजरली इन द दिल्ली. सो दिस एडीज मस्क्यूटोज involving to transmit dengue fever from infected person to non-infected person. So this Aedes mosquito act as a agent which transfer from dengue to another person. Which kind of Aedes? Aedes aegypti. So you can see this Aedes aegypti. This Aedes का जो scientific name है that is Aedes aegypti. This is the important causal agent of dengue fever. Clear? So actually Aedes के बारे में ये कहा जाता है कि हमेशा क्लीन वाटर में प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, इनका जो हैबिटेट है वो क्लीन वाटर है. सो एंड सेकेंड थिंग, ये हमेशा दिन में ही इंसान को बाइट करते हैं. तो दे बाइट प्राइमरली ड्यूरिंग द डे. क्लियर? ह्यूमन्स आर प्राइमरी होस्ट ऑफ द वायरसेस. इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन को ही अफेक्ट होते हैं इस वायरस की वजह से. क्यों? क्योंकि ये जो एडीज़ मस्क्यूटो हैं, एडीज़ एजिप्टाई, इस नेम को आप हमेशा याद रख लीजिए क्योंकि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एडीज़ एजिप्टाई इन्वॉल्व इन विच काइंड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीजेस. तो ये याद रखें. तो क्या होगा कि जब मस्क्यूटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है, एडीज़ मस्क्यूटो, तो वो दिन में ही उसको बाइटिंग होगा और वो दूसरे ह्यूमन को ट्रांसफ़र कर देगा. तो ह्यूमन इज़ द फर्स्ट होस्ट ऑफ द वायरसेस. ये हमेशा इम्पॉर्टेंट रखना है. प्राइमरी होस्ट होता है. कभी कभी क्या होता है कि
ये जो डिसीज़ेज़ होते हैं वो कुछ डिसीज़ेज़ बहुत सारे होस्ट कैरी करते हैं, लेकिन एडीज़ डेंगू फीवर में क्या होता है कि प्राइमरी होस्ट जो होते हैं वो ह्यूमन होते हैं। एंड इन्फेक्शन कैन बी एक्वायर्ड बाय सिंगल बाइट। ठीक है, तो दैट इज़ एनफ। फीमेल मस्क्यूटो टेक्स अ ब्लड मील फ्रॉम द गट from the infected person with dengue fever and transmit it to the अदर पर्सन। क्या होता है कि जब डेंगू फीवर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है तो उस इन्फेक्टेड पर्सन से वो जो वायरस है वो डेंगी मस्क्यूटो के गट यानी कि ये जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें स्टक हो जाता है। वायरस क्या होते हैं, मस्क्यूटो के एलिमेंट्री कैनाल में स्टक हो जाते हैं और वो करीब 8 से 10 दिन के बाद जब ये रहते हैं और जब ये एडीज़ मस्क्यूटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने गट से वो सारे वायरसेस को उस हेल्दी पर्सन के ब्लड में इंजेक्ट कर देते हैं। क्लियर? सो दिस इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। Now what is the dengue can also transmitted via infected blood product. So this dengue fever is called, it is grouped into the communicable or infection diseases because it caused by the mosquito and it is also transmitted it is transmitted by the Aedes mosquito and it is also transmitted via the infected blood products थ्रू दी ऑर्गन डोनेशन। कभी कभी जब ऑर्गन डोनेशन प्रोसेस होता है तो बाय डिफ़ॉल्टली ये जो ब्लड होते हैं वो एक नॉन हेल्दी से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ अ डिसीज़ डेंगू फीवर transmission. So this is all about the dengue fever. Now what will happen when a mosquito biting the person? So whenever mosquito carrying the dengue viruses bite a person, so these viruses enter into the skin. ठीक है, एंड मस्क्यूटो हमने पहले बताया कि जब कोई मस्क्यूटो किसी डेंगू फीवर पर्सन को बाइट करता है तो वो जो वायरस है वो मस्क्यूटो के गट्स में उसके माउथ में प्रेजेंट होता है और सलेवरी ग्लैंड में, और वो जब किसी पर्सन दूसरे हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो इट बाइंड विद द ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल से रिएक्ट कर देता है वायरसेस एंड रिप्रोड्यूस इनसाइड दिस सेल वाइल दे मूविंग थ्रू आउट द बॉडी। तो सबसे पहले जब एडीज़ मस्क्यूटो वायरस के गट में प्रेजेंट होता है और जब ये किसी हेल्दी पर्सन को काटता है तो सबसे पहले उस हेल्दी पर्सन के जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उसके साथ वायरस बाइंड करता है और वहीं पर मतलब ब्लड सेल्स में ही वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है और जब ये ज़्यादा रिप्रोड्यूस पॉपुलेशन हो जाएगा तो इट इज़ ट्रांसफ़र थ्रू आउट द बॉडी। So white blood cells respond by the producing a lot of proteins such as interferon. Interferon are responsible for many of symptoms. क्लियर? वायरसेस का एक पार्ट होता है, एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ कॉल्ड इंटरफेरॉन, और इंटरफेरॉन की वजह से बहुत सारे सिम्टम्स से हमें पर्सन में देखने को मिलता है, जैसे फीवर हो गया हो, स्नीजिंग, कफिंग, चिलिंग, हेडेक, ऑल दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स ड्यू टू द इंटरफेरॉन विच आर प्रेजेंट इन द ब्लड सेल्स और द हेल्दी पर्सन। सो ये सब देखने को मिलता है। नाउ सिम्टम्स तो हमने पहले ही बताया। सिम्टम्स, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या है? सडन ऑनसेट ऑफ फीवर। ठीक है, मतलब अचानक जो फीवर हो, हेडेक हो, तो दैट इज़ द साइन ऑफ द सिम्टम ऑफ द
dengue fever. Muscles and joints pain, rashes, these are the other symptoms. तो क्या हो गए? onset of fever, headache, muscles and joint pains. सबसे इम्पॉर्टेंट यही 3 सिम्टम्स होते हैं, सबसे ज़्यादा जॉइंट्स पेन, ठीक है। इस फीवर के साथ जब जॉइंट्स में पेन स्टार्ट हो तो दैट इज़ द सिम्टम ऑफ द डेंगू फीवर। एंड दिस जो कॉमन नेम हमने बताया कि ब्रेक बॉर्न फीवर, सो दिस कॉमन नेम इज कम्स फ्रॉम द joints pain. The alternative form break bone come from the associated muscles and joint pains. That's why it is also known as the break bone fever, means it is related to the joint pain of the body. Now this is all about the dengue fever. Now what is the prevention of the dengue fever? So if there is no vaccines, prevention is sought by reducing the habitat and number of the mosquitoes or limiting exposure to bite. अभी तक डेंगू फीवर का कोई भी वैक्सीन डेवलप नहीं हुआ है, तो इसलिए जो प्रिवेंशन है वो हम मस्क्यूटो आसपास के सफाई रखने से कम कर सकते हैं। जो वाटर स्टोरेज जो उनको हटा सकते हैं, वाटर को नए वाटर से रिप्लेस कर सकते हैं। एंड बहुत सारे कुछ माइक्रो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड, उनको यूज़ कर सकते हैं ताकि जो वाटर में प्रेजेंट जो एग मस्क्यूटो एग्स हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। एंड कुछ रिहाइड्रेशन मटेरियल यूज़ किए जाते हैं कि पेशेंट अच्छे ग्लूकोज कंडीशन ज़्यादा होना चाहिए, अच्छी ब्रीदिंग होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो उस डिसीज़ को डेंगू फीवर से वो ओवरकम हो सके। ना पैरासीटामोल दिया जाता है पेशेंट को इसमें। सो ऑल अबाउट दी नेक्स्ट जो वायरस है दैट इज़ दी चिकनगुनिया। This chikungunya is a viral disease, as I told you that it is transmitted to human by biting of the Aedes aegypti and Aedes albopictus mosquito. So आपको कंफ्यूज़न नहीं होना चाहिए, डेंगू फीवर एंड चिकनगुनिया का जो वायरस होता है वो सेम ही होते हैं, ठीक है। डेंगू फीवर भी एडीज़ एजिप्टाई की वजह से होता है और चिकनगुनिया में भी एडीज़ एजिप्टाई और अदर एडीज़ एल्बोपिक्टस मस्क्यूटो, ये वायरस होते हैं जिसकी वजह से चिकनगुनिया होता है। इनको शॉर्ट चिकनगुनिया वायरसेस, जिसको हम चिकू वायरसेस के नाम से जानते हैं। चिकू वायरसेस इज़ द मेंबर ऑफ अल्फ़ा वायरसेस। सो हमें पहले बताया है कि इनके जेनेटिक मटेरियल्स के अकॉर्डिंग वायरसेस को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो उनमें से हमने फ्लेविवायरिडी बताया जिसमें फ्लेवोवायरस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अल्फ़ा वायरसेस में चिकू वायरसेस होते हैं। सो अल्फ़ा वायरसेस इज़ अ ग्रुप ऑफ वायरसेस एंड इट्स फैमिली इज़ टोगावायरिडी. So Chiku virus is actually is the member of alpha virus genus of the alpha viruses, and this alpha viruses are the family of Togaviridae. So आप ऐसे समझिए कि जो टोगा वायरसेस में जो डिफरेंट वायरस होते हैं उनमें एक जीनस है दैट इज़ अल्फ़ा वायरसेस। उस अल्फ़ा वायरसेस का ही एक मेंबर है चिकू वायरसेस या चिकनगुनिया वायरसेस. So this is the important viruses, alpha viruses, which are present in the family Togaviridae, causing the chikungunya. The viruses was first isolated from blood of a febrile patient in Tanzania in 1953 and identified rapidly in Africa, India and Southern Asia.
द इंक्यूबेशन पीरियड इज़ ऑफ 2 to 12 days। ठीक है, जब कोई चीकू वायरसेस या हम अल्फ़ा वायरसेस कह दें, जब कोई अल्फ़ा वायरसेस किसी इंसान को इंटर करता है, होस्ट में इंटर करता है, तो वो वायरसेस 2 से 12 दिन का समय लेता है जिसमें वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर सके और सिम्टम्स को कॉज कर सके। सो दैट काइंड ऑफ डिसीजेज इज़ कॉल्ड साइलेंट चीकू इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये रैपिड सिम्टम्स नहीं देते हैं इनके। ये जब वायरस किसी बॉडी के अंदर इंटर करते हैं तो वो 2 से 12 दिन का टाइम लेते हैं जिसके अंदर वो अपने आप को प्रोड्यूस करते हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और जिसकी वजह से जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत आखिरी कंडीशन में शो होते हैं। So that is all about the chikungunya. What is the symptom of the chikungunya? The symptom of this illness, ठीक है, causing illness तो सभी में होते हैं, and the illness, क्योंकि हमने पहले बताया कि ये इसके जो सिम्टम्स होते हैं, इनके जो इंक्यूबेशन पीरियड होते हैं वो 2 से 12 दिन का टाइम लेते हैं। तो इसके दौरान कोई भी सिम्टम्स नहीं शो होता है। इसके बाद वाले में सिम्टम्स बहुत हाईली और फास्ट तरीके से शो होते हैं। तो दिस कॉजिंग द एक्यूट फेबाइल फेज ऑफ द इलनेस लास्टिंग ओनली 2 to 5 days, and this is the arthralgic diseases which affect the joints of extremities। ठीक है, लेग के जॉइंट्स, हैंड्स के जॉइंट्स से जो होते हैं, जॉइंट्स को अफेक्ट करते हैं ये। नाउ व्हाट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ चिकनगुनिया और चिकनगुनिया वायरसेस? एज वी नो दैट मस्क्यूटो is the causal agent or transmissible agent which transmit the chikungunya viruses from infected to healthy persons. So whenever mosquito infected bite any infected person, so it causing it bite the other healthy persons. So now next जो important होते हैं, it is the monkey and other wild animals may also serve the reservoir of the viruses। मतलब ये वायरसेस जो होस्ट होते हैं ह्यूमन के अलावा मंकी और अदर एनिमल्स भी होते हैं जिसमें ये वायरस उन्हें इन्फेक्ट कर सकता है, और इन्फेक्ट करने के बाद वो ह्यूमन को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसके डिफरेंट होस्ट होते हैं, वो डायरेक्ट ह्यूमन को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, वो मंकी एंड अदर एनिमल्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो जब ये मंकी और अदर वाइल्ड एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं तो जिसकी उस एनिमल की वजह से ह्यूमन बीइंग को भी इनडायरेक्टली वो अफेक्ट करते हैं। तो दैट इज़ द सो this virus is having the different hosts such as monkey, animals and human beings. These are the reservoir of the viruses. Now mosquito Aedes aegypti, these are the important agent which are transmit the distribute these diseases. Now what is the diagnosis of this? Actually in which infected person diagnosed with the help of a blood test. सो RBCs को लिया जाता है, एलिसा टेस्ट किया जाता है। सो एलिसा टेस्ट एंड PCR टेस्ट, एलिसा और PCR टेस्ट एक्चुअली डायग्नोस्ड टू आइडेंटिफाई द चिकनगुनिया डिसीजेस। तो इसके लिए एलिसा टेस्ट और PCR टेस्ट हमेशा चिकनगुनिया डिसीज़ में लिया जाता है। और एक्चुअली एलिसा और PCR टेस्ट बाकी अब जैसे ये कोविड वायरसेस में भी एलिसा और PCR टेस्ट यूज़ किया जा रहा है। तो प्रिवेंशन क्या है? ट्रीटमेंट करेंटली देयर इज़ नो ट्रीटमेंट फॉर द चिकनगुनिया।
डॉक्टर क्या कहते हैं कि इन्हें मेडिकेशंस के थ्रू ठीक करते हैं, या फिर वही है कि साफ़ सफाई, वाटर, साफ़ सफाई रखना है, क्लीनेस करना है, और ऐसे मस्कीटो रिपेलेंट केमिकल को यूज़ करना है ताकि मस्कीटो के बाइटिंग से बचा जा सके। फिर फुल शर्ट से लिया जाएगा, ठीक है। और सफाई करने, आसपास की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसमें पानी जमा ना हो। तो जहाँ पानी जमा होता है वहाँ पर वेरियस मस्कीटोज प्रोड्यूस होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, और वहाँ से फिर डिसीज़ ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाता है। तो दैट इज़ ऑल। होम्योपैथी ट्रीटमेंट भी यूज़ किया जाता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दी वायरल डिसीजेज़। क्लियर? So that's all for today.